Hi, Abhinav, I've joined. Yeah, welcome, Nitish. Our students are there. Yeah, Please, I could see them. they belong to 11th and 12th Humanities and Commerce. Okay, okay, So go okay. ahead and let them know about you and your experience and how they can get into the college and what it should be their strategy and all. Please guide them. Okay, fine, fine, fine. Thank you. So, what I've decided about this present. So, everybody's comfortable with English, or you prefer me to speak in Hindi, or you want me to use a mix? How is it that it work best? Bilingual. Bilingual. Perfect. ठीक है. Fine. So, मैंने ये presentation जो है 2-3 हिस्सों में बांट दिया है. ठीक है. और प्रेजेंटेशन को 2-3 हिस्सों में बांटने का रीजन ये है कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, आपकी क्या यूनिकनेस है दैट कैन कैरी यू फॉरवर्ड, ओके, और दैट विल बिकम योर सेलिंग पॉइंट, वन थिंग. सेकंड, जो स्ट्रेंथ्स है उन स्ट्रेंथ्स को किन और चीजों के साथ कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, यू नो, दैट यू हैव अ सर्टेन set of strength, but apart from that, like, you know, one needs to like, you know, complement it, because what you have is not just enough, because world is rapidly changing around us. And this is true for even, like, you know, people who are professionals, who are settled, जिनका करियर बन चुका है, so to say, उनको भी कई बार इन्वेंशन, इनोवेशंस और एडिशंस की जरूरत पड़ती है. और तीसरा, like, you know, what could be an underlying philosophy, so that, like, you know, we can be the best version of ourselves, and we can keep reinventing that again and again. तो ये 3 ब्रॉड एरियाज हैं जिसके बारे में मैं तुमसे बात करूंगा आज. और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हारे अंदर जो भी क्वेश्चंस हो या जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहे हो, तुम उसे जरूर नोट कर लो while I am making my statements. Or towards the end, you know, we could have some time designated to, like, you know, answer those queries. ठीक है. So I mean, I'm like, roughly how much time do I have with the students? We have planned for 1 hour and 30 minutes. Okay, okay, 1 hour plus 30 minutes. Okay, ठीक है, ठीक है. Let's see, like, you know, I think you would not be needing this much of time, but we would certainly, like, you know, see how it turns out. Fine. So, uh, just fine. So, students, can they respond to me also? Yes, sir. Perfect, perfect, perfect. Fine, fine, fine. So, you know, all of you are humanities and commerce or art students. Okay. तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ फर्स्ट, एंड यू गिव मी द स्टेटमेंट्स एंड आई विल मेक अ नोट. आई हैव अ नोटबुक विथ मी. तुमने क्यों आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स पढ़ना शुरू किया, ये मुझे बताओ. क्या तुम्हारे हिसाब से क्या वजह थी तुम्हारे इस चॉइस के पीछे की? एंड बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल. नहीं पता था, मार्क्स कम थे, साइंस नहीं मिल रहा था, या फिर मुझे ये अच्छा लगता था, वॉट एवर इट इज, जस्ट टेल अस फ्रैंकली, because that will help. Once I know the exact reason, then I could help you with improving things for better. तो क्या वजह थी जो तुमने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स लिया, या क्यों लिया? टेल मी. Run, sir. One by one. Run. Yeah. Sir, yes, I wanted to become like CA. I want to pursue for CA, so I chose commerce. सीए कॉमर्स के लिए, ठीक है. तो करियर चॉइस, Yes, sir. ठीक, फाइन. एनीवन एल्स? सर, कॉमर्स में बहुत डाइवर्सिफिकेशन होता है और एमबीए के लिए एक अच्छा रूट मिल जाता है और बिजनेस के बारे में एक आइडिया मिल जाता है. परफेक्ट, परफेक्ट. बिजनेस, आपको उठ के, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे भी बोल सकते हैं, यू नो. सर, पहले तो हाँ, ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता था और सिविल्स करना है आगे जाके, तो इसीलिए ह्यूमैनिटीज ली. ठीक है. एनीवन एल्स? Sir, I have to opt theatre studies and it was there in humanities. And there was another reason also. I am weak in science, so I have opted for humanities. Okay, okay. Thank you. Who else?
I opted humanities because I love history a lot, and then I want to do something with history, but I'm still not sure about it. Okay, okay. Anyone else? ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता था मुझे और साइंस मुझे पसंद नहीं था और मुझे सिविल सर्विस करना था तो उसके लिए Civ- ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट इज बेस्ट दैट्स व्हाई आई चूज ह्यूमैनिटीज ठीक है, ठीक है. Anyone who think they have a different reason from what others or their friends have suggested, you know, I want to like, I want to have a more broader reason set. That's why I'm asking you. कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक जो बच्चों ने वजहें बताई हैं उन वजहों के अलावा उनके पास कोई रीजन है या दे हैव समथिंग न्यू टू ऐड है? हाँ, प्लीज गो अहेड. I The one raising hand. wanted to explore new subjects that's why You wanted to explore new subjects. Fine. Anyone else? Would you like to add someone? Wide job opportunities and options. Come again? It has wide job opportunities and options. Humanities. Okay. Mhm. Fine. Anyone else? From the left corners or left end or the left benches, and people from the center and the right, my right, they have been speaking. Not anyone from the left has raised their hands or added anything. Could you just? Any one of you? Okay, fine. I mean, if one of you wants to add, please, feel free to add here. So one thing which kind of is clear that, you had a reason. You did not just took it because maybe your friend was taking it, or you did not take it maybe because your parents said you to, or you did not take it because, you definitely put some thought before taking up this paper. Now, whether that's a correct way of deciding upon a stream in your 11th and 12th or not, that's a different thing, But what is praiseworthy here is that, all of you thought that, well, pursuing humanities or pursuing commerce or arts is the optimal thing for me to do, is the best thing for me to do in order to achieve what I want. Because you definitely dream in a manner whereby taking arts or humanities or commerce is making you closer to your. आपने जो भी सोचा है उस सारे के सारे कहानी में आपका ह्यूमैनिटीज लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स पढ़ना आपके लिए फायदेमंद साबित होता है. और यही वजह है कि आप लोगों ने ये स्टेट किया कि सर किसी ने जैसे, एंड आई कुड नॉट फिगर आउट द थिंग्स जो आपने बताया है उन चॉइसेस में से. तो क्या समझ में आ रहा है कि एक किसी ने सोचा कि व्हाट, स्टडीइंग कॉमर्स कैन परहैप्स sharpen my business acumen, and MBA karna could be a great career choice thereafter. So why don't study commerce and maybe go for a commerce degree in the bachelor's or management degree in the bachelor's itself, and then perhaps pursue an MBA also altogether in the future. So that's a very fair way of thinking about it. कुछ लोगों ने ह्यूमैनिटीज के लिए बोला कि because they wanted to do civil services, and that's the reason they are taking humanities for that matter. They also have a framework in their head where they think that, well, because civil services at the end of the day is essentially about managing public administration, or say public or society at large, or framing policies for us who live in the society, working with the government. So maybe humanities deals with these subjects, humanities deals with these topics or areas. So therefore it's good to perhaps pick on humanities. तो आपकी अपनी रीजनिंग्स थी, ठीक है. किसी ने बोला कि मुझे एक्चुअली सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है. किसी ने बोला हिस्ट्री पसंद है. किसी ने ये भी बोला कि आई वाज वीक इन साइंस एंड देयरफॉर so it's good that at least he or she was able to identify that what is their strength area and what is their area,
what's one discipline which they are not much more comfortable with, so they decided to like pick on humanities. तो तुम्हारे रीजनिंग्स को देख करके क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, मेरा करियर का जो ट्रेजेक्ट्री है वो मेरे पढ़ाई के डिसिप्लिन के माध्यम से बहुत ज्यादा गाइड होता है। ठीक है, ये बात जितने भी लोगों ने अभी अभी कही है, अपने अपने चॉइसेस एक्सप्लेन किए हैं, हाथ उठाया था, बोला था, या सोच भी रहे हो अगर तुमने नहीं पार्टिसिपेट किया पहले, तो एक बात तुम्हें समझ में आएगी कि बेसिकली तुम्हारे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स लेने का जो डिसीजन था, वो डिसीजन कहीं ना कहीं तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे करियर के ट्रेजेक्ट्री में इंपॉर्टेंट है। यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? हाँ ना, ऐसा लगता है तुम्हें कि हाँ, एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मेरा आर्ट्स पढ़ना एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ करियर को डिसाइड कर रहा है, मेरा ह्यूमैनिटीज पढ़ना एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ करियर को डिसाइड कर रहा है, मेरा कॉमर्स पढ़ना एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ करियर को डिसाइड कर रहा है, या मेरे लिए एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ करियर चॉइसेस मेरे सामने ला करके दे रहा है। ऐसा लगता है आपको? फेयर इनफ। और बहुत हद तक या रूडिमेंट्री स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे तो ये बात सही भी है। ठीक है, कि कुछ चीजों के लिए तो सही में डिस्टिंक्शन बन जाता है। आपने साइंस नहीं पढ़ी, इंजीनियरिंग नहीं करी, तो बहुत सारे रोल्स आपके लिए बंद हैं। आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ी तो बहुत सारे रोल्स आपके लिए इन सेटअप आसान हो जाते हैं, या आपके लिए शायद वो आसान है, कुछ एक रोल से कुछ एक रास्ते आपके लिए जल्दी खुल जाते हैं। बीटेक करने में हो सकता है आप 4 साल लगाएंगे, बीए करने में आप 3 साल कर सकते हैं, उसके बाद आप एक गवर्नमेंट सर्विस में करियर देखना चाहते हैं या कॉर्पोरेशंस में करियर देखना चाहते हैं, आपको बना सकते हैं। तो देखो, जो नेक्स्ट आइडिया हमारे पास जो हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पे, कि अगर मेरे सब्जेक्ट का करियर से लेना देना है, ठीक है, या करियर के पाथ से लेना देना है, तो इसको लेकर के एक शॉर्ट रन के लिए भी बात सोच के रखनी है और एक लॉन्ग रन के लिए भी बात सोच करके रखनी है। ठीक है, और बेहतर होगा कि अगर आप अपने दिमाग में ये नोट करें, या फिर आप इसको अपने नोटबुक्स पे भी लिखते जाएं, जो भी इस कॉन्वर्सेशन से आपके लिए यूजफुल बनता जा रहा है। पहली बात कि सब्जेक्ट का जो भी आप डिसिप्लिन पढ़ते हैं, ठीक है, उस डिसिप्लिन का आपके करियर से लेना देना शॉर्ट रन में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, शॉर्ट रन से मेरा कहने का मतलब है कि अभी आप जैसे 11th-12th में हैं, तो अगले 5 साल या 6 साल कहा जाए, या अगर कोई लोग ऐसा भी हो कि वो पढ़ते ही पढ़ते चले गए और वो पीएचडी करने चले गए, तो अगला 10 साल लेट्स से आपके करियर में आपके अभी के स्ट्रीम का कुछ ना कुछ असर देखने को मिल सकता है। और जितनी तेजी से चीजें बदल रही है, लेट्स से लाइक अगर आप बीटेक करते हैं, अगर आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, या बीकॉम करते हैं, बीए या बीकॉम करते हैं, अगर आप ये 2 चॉइसेस जो हैं आपके पास, तो अगले कम से कम 4 सालों के लिए, 3 से 4 सालों के लिए आपके लिए शॉर्ट रन का वो टाइम पीरियड है कि जो मेरा फर्स्ट डिग्री होगा ना 12th के बाद, बैचलर्स की डिग्री, उस डिग्री में मेरे इस सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जो मैं फर्स्ट स्ट्रीम कॉलेज में जाकर के किस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, मैं जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मैं एलिजिबल होऊंगा, उस सब्जेक्ट्स को, या वहां तक की जर्नी में, आपके अंडर ग्रेजुएट तक की जर्नी में आपके 11th-12th के चॉइसेस का बहुत ज्यादा लेना देना है, बहुत ज्यादा असर होगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं या मीडियम रन की बात करूं कि ठीक है 4 साल हो गए, उसके बाद पता है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा फ्रीडम है आपके पास। आप हो सकता है कॉमर्स पढ़े और मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में करने चले जाए, आप हो सकता है इंग्लिश लिटरेचर पढ़े लेकिन हाँ फिर कॉमर्स करने नहीं जा सकते, वो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। लेकिन हाँ, आप हो सकता है आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, मास्टर्स साइकोलॉजी में करने चले जाए, आप हो सकता है फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हो जाए। तो 4 साल के बाद मास्टर्स लेवल पे आपके पास जाकर के वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इनफैक्ट बैचलर्स में भी आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि एक आप मेजर पेपर सेलेक्ट करें, एक आप माइनर पेपर सेलेक्ट करें, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बाकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कंट्री के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, आपके सब्जेक्ट से आपके करियर ट्रैक का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। और आपके सब्जेक्ट का आपके करियर ट्रैक से कैसे लेना देना है, 2 तरीके से लेना देना है। एक तो शॉर्ट टर्म में या आपके ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट करता है, या आपके सामने एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस लेकर के सामने आता है। और लॉन्ग रन में मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपली लॉन्ग रन में ऐसा होता है कि आप यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू विश, व्हाटएवर यू वांट टू पिक।
Okay, that freedom is available to you in the long run. Now अब थोड़ा और कॉन्क्रीट सवाल पे आते हैं कि ठीक है सर, आपने एक फ्रेमवर्क समझाया मुझे, आप बता रहे हैं हमें, लेकिन क्या स्ट्रेंथ है हमारा, या जिस तरीके के करियर चॉइसेस को हम परस्यू करना चाहते हैं उस तरीके के करियर चॉइसेस को परस्यू करने के लिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज कितना, सॉरी, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स किस हद तक हमारे लिए मददगार साबित होगा? ठीक है, ये एक सवाल आएगा। देखो, पहली बात जो मैंने तुमसे कही कि देखो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा मायने नहीं करता है, लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। ये मैं तुम्हें इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि कोई भी जो स्किल सेट है आज के तारीख में, कोई भी जो स्किल सेट है, वो स्किल सेट बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे एक्वायर किया जा रहा है, या उसके लिए स्पेसिफाइड कोर्सेज बन रहे हैं जिन कोर्सेज के थ्रू उन स्किल्स को एड ऑन किया जा रहा है। और ये एक बोला जाए तो प्रॉब्लम भी है एजुकेशन सिस्टम के साथ, और या तो बोला जाए तो इसका कैरेक्टराइजेशन भी ऐसा ही। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो सही में ऑन डिमांड स्किल्स हैं, ठीक है, स्किल्स विच आर रियली इन डिमांड, those skills in particular are not taught directly in the universities for most of the situations. जैसे कि अगर तुम में से मान के चलो कोई एक इंसान ऐसा हो जो सोचता हो कि नहीं मुझे साइकोलॉजी में रिसर्च करना है, या किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, वो इकोनॉमिक्स में रिसर्च करना चाहता है, तो अब रिसर्च करके कॉर्पोरेट करियर बनाना चाहते हो तो हो सकता है कम्युनिकेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज की तारीख में, या विजुअल डिजाइन का बहुत ज्यादा रोल है आज की तारीख में, क्योंकि लोग क्रिएटर बन रहे हैं, लोग अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं सो दैट दे कुड सेल प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर। तो उसके लिए ना कम्युनिकेशन, लैटरल थिंकिंग, इस तरीके के जो स्किल्स हैं, इन स्किल्स नाम का कोई डायरेक्ट कोर्स नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर है, उसको तुम कैसे अपने फेवर में टिल्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूं इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है। मैं उन स्पेसिफिक्स में भी जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, लेकिन चाहे तुम साइकोलॉजी ऑनर्स पढ़ो, चाहे तुम कॉमर्स पढ़ो, चाहे तुम बीकॉम पास पढ़ो, चाहे तुम इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ो, चाहे तुम हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, इन सारे के सारे डिसिप्लिन के साथ, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन के साथ जो एक अनसेड एडवांटेज होता है, या जो एक खास करके ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन के साथ जो अनसेड एडवांटेज होता है, वो एडवांटेज इस बात में है कि यू शुड अ फेयरली गुड रीडिंग हैबिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर तुम सोचते हो या अगर तुम ऐसा चाहते हो कि ये जो मेरा स्ट्रीम का चॉइस है ये मेरे करियर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, और जब मैं ये कह रहा हूं कि इस स्ट्रीम का चॉइस तुम्हारे करियर को किस तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, तो मैं केवल यही बात हाईलाइट कर रहा हूं कि इस स्ट्रीम में तुम्हें ऐसा क्या मिलता है जो शायद बाकी स्ट्रीम्स में ना मिले, और क्यों तुम्हें उस स्ट्रीम के इस एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए। ये ठीक वैसा ही कहने के जैसा है जैसे कि अगर तुम किसी ऐसे ग्राउंड में गए खेलने के लिए जहां बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ है, तो वहां बैडमिंटन खेल के ज्यादा अच्छा कर सकते हो या ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, राइट, बजाय इसके कि वहां पे क्रिकेट का पिच बनाना शुरू कर दो। तो जैसे ही तुमने एक स्ट्रीम चुना है, उस स्ट्रीम में एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन ज्यादा रिपीटेडली यूज हो रहा है, ठीक है, जो तुमको एक पार्टिकुलर वे ऑफ डायरेक्शन या एक पार्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग में प्रमोट करता है या पुश करता है उस डायरेक्शन में। हालांकि यूनिवर्सली सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, एवरीवन शुड रीड अ लॉट लॉट लॉट, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज पर्सन, ठीक है, तुम्हारा पहला स्ट्रेंथ होना चाहिए दैट यू आर अ वोराशियस रीडर, ठीक है। यू मस्ट बी अ वोराशियस रीडर इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म, वन थिंग। सेकेंड थिंग, रीडिंग के अलावा जो तुमको एम्फेसिस, सेकेंड एम्फेसिस लेकर के आना चाहिए जो नॉर्मल कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें, वो है दैट यू शुड परस्यू सम कोर्सेज फ्रॉम फिलॉसफी एंड लॉजिक आल्सो, ठीक है। जो भी तुम भविष्य में जिस भी तरीके का करियर चूज करते हो, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो या किसी और तरीके के कॉलेजेस ज्वाइन करते हो, तो देखना कि वहां पे लॉजिक नाम का कोर्स जरूर फ्लोट होता है फिलॉसफी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के बच्चों को मैं कहूंगा कि रीडिंग का तो एक हैबिट डालना ही डालना है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, चाहे जितने भी तुम्हारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं रीडिंग में उनको पढ़ते जाना है तुम्हें, ठीक है। मैं बताऊंगा ये कैसे ट्रांसलेट होता है तुम्हारे करियर के सक्सेस के लिए बाद में। दूसरा, लॉजिक
का जो पेपर्स है या फिलोसफी के जो पेपर्स हैं दैट यू मस्ट स्टडी. व्हाई आई से मस्ट स्टडी? बिकॉज दीज पेपर्स आर फंडामेंटली, और से अ पेपर इन फिलोसफी स्पेशली लॉजिक खास करके का जो पेपर्स आता है, दीज पेपर्स एसेंशियली शार्पन योर आर्गुमेंटेटिव स्किल्स, दे शार्पन योर लॉजिकल एबिलिटीज आल्सो. ठीक है, वो एग्जाम लॉजिक वाला क्वालिफाई करने के लिए नहीं है कि ठीक है 4 बच्चे गोल बैठे हुए हैं, वो वाला लॉजिक नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे जो लॉजिक की पढ़ाई है दैट इज अ सिस्टेमिक स्टडी. ठीक है, कि ठीक है एक मोटे मोटे तौर पे अगर डिविजन्स करना है जो कि कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हो, ठीक है, तो किस तरीके से वो डिविजन्स कर सकते हैं. जब तुम लोगों से बात कर रहे होते हो या किसी बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, तो वहां फिलॉसफी का लॉजिक का जो पेपर है वो तुम्हारा मदद वहां पे उस तरीके से करता है. वो तुम्हें इस बात के लिए या तुम्हें वो उस डायरेक्शन में पुश करता है जिस डायरेक्शन को शायद तुम पहले मिस कर रहे थे. ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैं तुमसे अगर एक सिंपली बात पूछूं, एंड आई वांट सम इंटरेक्शन फ्रॉम योर एंड. तुम में से कितने सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बताओ? गुड, अ लार्ज नंबर ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर्स. तो जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बताओ, I mean, just tell me any recent story that you read and that made that is still imprinted in your memory. कोई भी एक कहानी जो कोई भी एक न्यूज़ जो तुमने पढ़ी हो या स्टोरी पढ़ी हो या एडिटोरियल पढ़ा हो and that is still etched in your memory. Can you be louder? I can't get you. Any one of you? Any one of you, any story from the newspaper, or let's say any magazine story that you have covered. India Today पढ़ा है. Yeah, please go ahead. सर एक 4-5 डेज पहले हम एक वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वो एक आया था, आर्टिकल आया था, वही देख रहे थे. तो क्या उसके बारे में पढ़ रहे थे? तो उसके बारे में पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ करके लगा आपको? बताइए, कुछ शेयर कीजिए सबके साथ. What did you get from it? सर पहले तो ये लगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी जो आया है, मतलब उसका बात किया जा रहा है, वो लाइक नया नहीं, उसके बारे में पहले भी बहुत ज्यादा चर्चा किया जा चुका है. उसके बाद उसका प्रोस एंड कॉन्स पढ़े, उसके बाद जो अभी उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसको हेड कर रहे हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उनका उस कमेटी के बारे में थोड़ा पढ़े, फिर उसका प्रोज एंड कॉन्स पढ़े कि उससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, यही सब. फाइन. तो देखो, जैसे तुमने मुझे उस स्टोरी से जो चीजें बताई, मैंने तुमसे पूरी कहानी नहीं पूछी ना, तुम वो पूरी कहानी बता रहे थे कि सर क्या क्या लिखा है, बट तुमने क्या किया, तुमने बोला कि सर उस स्टोरी में एक तो ये पता चला कि इसका एक हिस्ट्री है, इस बिल को लेकर के या इस प्रपोजल को लेकर के एक हिस्ट्री है. तुमने दूसरी बात क्या यूज की उस स्टोरी को डिस्क्राइब करने के लिए? तुमने कहा कि सर एक हिस्ट्री होने के साथ साथ ये पता चला कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है. ठीक है, और ये पता चला कि अभी जो इसके चेयरमैन है वो ही इज हेडिंग इट, तो अभी इसका मैकेनिज्म क्या है, काइंड ऑफ कि अभी ये किसके गाइडेंस में चल रही है, कैसे चल रही है, कितने मीटिंग्स हुए हैं, क्या क्या करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. तो तुमने क्या किया, तुमने बेसिकली 4 पॉइंटर्स उठाए उस पूरे के पूरे आर्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए कि सर इस कहानी का एक बैकग्राउंड है, ठीक है, इस कहानी के प्रोज एंड कॉन्स हैं, या इस कहानी में प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस कहानी का एक अपना सिस्टमिक वे है जिससे ये फंक्शन कर रहा है, यानी इस प्रोसेस का ये जो डायलॉग चल रहा है. ये जो तुमने काम किया इनवेरिएबली ये कुछ भी नहीं है, फिलॉसफी का काम है कि तुम कैसे कॉम्पार्टमेंटलाइज करते हो कि ठीक है, दिस इज वन थिंग, दिस इज सेकेंड थिंग, दिस इज थर्ड थिंग, दिस इज फोर्थ थिंग अबाउट दिस आर्टिकल. तो जब ये तुम डिड्यूस करने की जो तुम्हारी एबिलिटी है, तुम अब कॉमर्स वालों को भी यहाँ पे लगेगा कि नहीं, हाउ दिस इज मीनिंगफुल फॉर देम ऑल्सो. अगर तुम कॉमर्स भी पढ़ते हो तो भी तुम्हें लॉजिक का पेपर पढ़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो जो पैसेजेस आएंगे तुम्हारे कैट के एग्जाम में या जैट के एग्जाम में, या लेट्स से कल के तारीख में अगर तुम ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो, और कल के तारीख में तुम्हें लिखना है, तो तुम्हारे अंदर ये क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा आई हैव टू बी प्रिसाइज, जैसे तुमने मुझे बताया कि ये 4 चीजें उस आर्टिकल से ली जा सकती हैं, तो कल की तारीख में जब तुम कोई कुछ काम लिखोगे तो आई एक्सपेक्ट कि सामने वाले को पढ़ करके वही क्लैरिटी आनी चाहिए. Am I making some sense to you? थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Right? So this is the second point which is needed for ensuring that you benefit most from
परसुइंग अ ह्यूमैनिटीज बेस्ड और आर्ट्स बेस्ड ग्रेजुएशन कोर्स? क्या पहली बात, रीडिंग वोराशियस रीडर होना चाहिए तुम्हें। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इट्स अ प्रॉपर रिक्वेस्ट कि तुम फिलोसफी के 2-3 कोर्सेज, लॉजिक फॉर्मल, लॉजिक इनफॉर्मल, ये जरूर परस्यू करोगे, ठीक है। इससे दिस विल हेल्प यू इन इमेजरेबल वेज। ओके, चाहे आप कॉमर्स कर रहे हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज कर रहे हो, दो बात हुई। तीसरी बात यह है कि ये सवाल उठता है कि ह्यूमैनिटीज लिया है, कॉमर्स लिया है, ठीक है, तो मेरा स्ट्रेंथ और क्या क्या है? तुम्हारा स्ट्रेंथ बेसिकली वही है जो इस डिसिप्लिन का स्ट्रेंथ है। तुम्हारा स्ट्रेंथ वही है जो इस डिसिप्लिन का स्ट्रेंथ है। कॉमर्स एज अ डिसिप्लिन का क्या स्ट्रेंथ है? कॉमर्स एज अ डिसिप्लिन का स्ट्रेंथ है दैट इट नोज वेल अबाउट बिजनेस, इट टॉक्स अबाउट बिजनेस। तो कॉमर्स लेने से तुम्हारे अंदर बिजनेस एक्यूमेन बहुत ज्यादा आ जाएगी, थोड़ा अजीबोगरीब होगा कहना। बिजनेस एक्यूमेन है और कॉमर्स पढ़ोगे तो बिजनेस एक्यूमेन शार्प हो जाएगी, ज्यादा वैलिड है कहना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तुमने कॉमर्स पढ़ाई की, ठीक है, या कॉमर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अब अगर कॉमर्स पढ़ रहे हो तो कॉमर्स का कॉमर्स की तरह इस्तेमाल आना चाहिए तुम्हें। व्हाट आई इंटेंड टू से फ्रॉम दिस इज कि जब भी तुम सोसाइटी में जाते हो, जब भी तुम आसपास देखते हो, तुमको क्या बिजनेस प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जो तुम्हें करना पड़ेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रेडिशनल बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की डिग्री लेकर के या बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करके बहुत ज्यादा करियर में चेंज नहीं आएगा तुम्हारे। और क्यों नहीं आता है बच्चों के करियर में चेंज? बिकॉज दे एक्चुअली डू नॉट फुल्ली एक्सप्लॉइट द एडवांटेजेस दैट देयर डिसिप्लिन्स ऑफर टू देम फॉर दोस 3 years। वो 3 साल ना मजे मजे में 15-15 दिन पढ़ाई करके, या 2 सेमेस्टर है तो 30-30 90 दिन पढ़ाई करके वो निकाल लेते हैं एग्जाम। ऐसा करोगे तो यू वुड बी एट अ लॉस, दैट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर कंटिन्यूअस असेसमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर वो नहीं करोगे, समवन एल्स इज डूइंग इट, ही और शी विल ग्रैब द जॉब, यू वुड नॉट बी एबल टू कैप्चर इट। ये एक डिसएडवांटेज है आज के दौर का। जिस जमाने में तुम ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, या जिस जमाने में तुम पैदा हुए हो, और जो तुम्हारे सामने कंपटीशन का लेवल है, ठीक है, तो स्किल सेट में जो तुम्हारा डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के स्ट्रेंथ को ही तुम्हारा खुद का स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। मैं ह्यूमैनिटीज बोल रहा हूँ, तो ह्यूमैनिटीज वालों को क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए? तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तुम ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो जब कहीं किसी जगह पे जाते हो तो उस जगह के बारे में, क्या उस जगह के हुलिये को देख करके या उस जगह के लोगों को देख करके तुम्हारे दिमाग में कुछ डॉट्स कनेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो, जो कि बहुत हद तक संभव है क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, क्लास 11th-12th में हो, लेकिन ये करना चाहिए तुम्हें। इस दिशा में तुम्हें प्रयास करना चाहिए कि ठीक है, अगर कहीं जा रहे हैं, पटना में रह रहे हो, मान के चलो तुम सारे के सारे लोग, एक हिस्टोरिकल टाउन है, ठीक है, अब मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ते हो या किसी और एम्पायर के बारे में पढ़ते हो, कुम्भरार जाकर के मान के चलो घूम फिर के आते हो, या राजगीर जाते हो घूमने के लिए, या बोध गया जाते हो घूमने के लिए, तो 10 मिनट के लिए ही सही या 20 मिनट के लिए ही सही, क्लासरूम में जो आपस में बच्चे हैं उनको जरूर डिस्कस करना चाहिए ये कि ठीक है, उस समय का सोसाइटी कैसा था, उस समय के सोसाइटी में इस तरीके की जरूरतों का कैसे ध्यान रखा जाता होगा, या उस समय के समाज में या उस समय के सोसाइटी का ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा चलता होगा। कॉमर्स वाले को भी खींच लो इसमें। तो इसेंशियली तुम्हारा काम, या हम सबका काम बेसिकली, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वी आर एंगेज्ड इन समथिंग वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ रिसर्च, ठीक है, एज अ जनरलिस्ट हमारा तुम्हारा काम ये है कि हम अपने आसपास के फंक्शनिंग को बहुत अच्छे से समझ पाए कि दुनिया हमारे आसपास कैसे फंक्शन कर रही है, पास्ट में कैसे फंक्शन कर रही थी, प्रेजेंट में कैसे कर रही है, फ्यूचर में कैसे करेगी। फ्यूचर में कैसे करेगी इसका अंदाजा बिजनेस में लगाते हैं, दैट्स व्हाई दे मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रेजेंट में कैसे चल रही है इसका अंदाजा पॉलिटिशियंस लगाते हैं, दैट्स व्हाई दे राइज टू पावर। और पास्ट में कैसे चल रही थी इसका अंदाजा जो है हिस्टोरियंस लगाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू अस वेरी नाइसली, ओके फाइन, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। चाहे इकोनॉमिक हिस्टोरियन हो या जनरल हिस्टोरियन, या जो सोशियोलॉजिस्ट है वो समाज के ताने बाने को समझता है कि ठीक है, समाज में एक ग्रुप ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है, एक आइडेंटिटी ऐसी है, एक आइडेंटिटी ऐसी है, और इसकी वजह से इस इंटरफेरेंस से क्या निकल के आए। तो जो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम एक बात कह सकते हो कि सर, एक आपने बोला रीडिंग इंपॉर्टेंट है जो कि हमें करना चाहिए, दूसरा आपने बोला करियर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में
जाओगे, ऑनर्स का पेपर पढ़ते हो तो एक साथ में फिलॉसफी का पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, लॉजिक या लॉजिकल एक्यूमेन के लिए जरूरी है। तीसरा मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, तीसरा मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बारे में, ठीक है। और ये देखो मैं बहुत जनरली इस बात कर रहा हूँ इसके बारे में, तो थोड़ा अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगी मेरी बात, या मैं और इलैबोरेट भी करूंगा इस बारे में। देखो एक तो हो गया जो मेरे डिसिप्लिन का एडवांटेज है, हमको वो स्ट्रेंथन करना है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो हमारा डिसिप्लिन का एडवांटेज है, उसी एडवांटेज को अच्छी तरीके से उठाने के लिए उसको कैसे हम इंटरनलाइज करें, उसके लिए कुछ फिलोसफी के पेपर्स पढ़ने हैं, ह्यूमैनिटीज वाले हों या कॉमर्स वाले हों, लॉजिक एंड इनफॉर्मल लॉजिक का पेपर पढ़ना है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाने के बाद, ठीक है। और तीसरा मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात। कॉम्प्लीमेंटैरिटी से मेरा मतलब ये है कि तुम अब ये समझो कि ये तो मेरे डिसिप्लिन का एडवांटेज है, बट इसके साथ हम और क्या जोड़ेंगे जिससे कि आई वुड बी अ टोटल पैकेज, एनीबडी वुड डाई टू हायर मी, or I would become very valuable as a person. Am I making sense to you? Yes. Yeah, fine. तो तुम्हें से मैं तुम्हें जो 2-3 बातें कह रहा हूं, एक राइटिंग हैबिट, ठीक है, तुम्हें लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, डेली लिखो, नहीं कुछ करते हो डायरी लिखो। आई एम टेलिंग यू दीज आर लॉन्ग टर्म स्किल्स, और तुमने अगर अभी से इनकलकेट किया, यू वुड नॉट रियलाइज हाउ ट्रेमेंडसली गेनफुल दिस कुड बी टू यू इन फ्यूचर। ओके, राइटिंग हैबिट्स, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन, व्हाई राइटिंग हैबिट्स। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ऐसे कोई जनरल एडवाइस नहीं है कि मैं तुम्हें जनरली बोल रहा हूँ ये लॉजिक का पेपर पढ़ लो, ये रीडिंग का काम कर लो और ये राइटिंग का काम कर लो। व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर, these are results which are backed by neuroscience exactly. When you write, you are able to focus on things better, you are able to focus on what you want to convey, and when you write, you are able to collect your thoughts better. जैसे अभी मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि प्लीज वन ऑफ यू स्टैंड अप एंड लेट्स से लाइक द गाय इन द ग्रीन ड्रेस, फर्स्ट रो, ओके, सो जस्ट बैठ जाओ, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेल मी लाइक why do you want to where do you want to study for your bachelor's? Tell me. Sir, I would prefer Bangalore. Bangalore. Any institution in your head? No, sir, not like I've not made a fixed. Any degree that you want to pursue? I would like to prefer BBA as bachelor. BBA. Now, like just like tell us why do you want to pursue BBA? Sir, like according to me, BBA has a lot of like reach in the future because it is one of the most required jobs in the future, as the business in India is a very growing field. Fine. You almost took 20 seconds and you conveyed me one point, right? But you know what? If you go back to your home, or maybe when you have an off hour in the school itself, and you take some time out and start penning down your thoughts that why do I want to do a BBA, you will have a much better answer for yourself, for your parents, for anyone else who asks you this question. Why? Because once you sit down with yourself and once you start writing, you essentially start having that conversation with yourself. You want to do that BBA degree, right? But as of now, what was happening? You were describing that to me. You never actually had that conversation with you before. Or maybe you just sat down in front of mirror, you looked here and there, you talked to few friends, you talked to you talked to some senior, some cousin, some uncle, aunt, and then you said that, yeah, what, BBA really looks like a good degree for me. This is actually not a good strategy to arrive at a decision. The good strategy to arrive at a decision is to sit with yourself, talk with yourself, and then pen down. Once you start penning down, you would realize that, okay, fine, some of the things were just a fancy stuff in my head. Some of the things were just random, gibberish that came to me from here and there. I mean, I just listened and carried those things in my head. I haven't researched well. So once you start writing, two things start to happen in your life. You become much more serious about what you think, because then you realize that, well, just to utter my word, I could be a compulsive speaker. Just call me anywhere, I'll speak 5 lines, but that doesn't help, that doesn't add up, because what I say has got very little value. It's not very well researched. So once you start writing, once you start developing this habit, तो आपको रिसर्च करके लिखने की आदत पड़ती है। आप थोड़ा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा किताबों का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप सोचते हैं
कि अच्छा ठीक है, यही बात कहना चाह रहा हूं ना, और ये बात क्यों कहना चाह रहा हूं। तो आर्टिकुलेशन और रीजनिंग दोनों आपका इंप्रूव होता है। एंड ट्रस्ट मी, अभी आप बताइए आपके हिसाब से सबसे अच्छा पार्लियामेंटेरियन कौन सा है, आपका फेवरेट एमपी कौन सा है, जो बहुत अच्छा बोलता हो या जो आपको लगता हो कि अच्छा अरे यार ये क्या बहुत खूबसूरत स्पीकर है। somebody was raising their hand, yeah, शशि थरूर। Shashi Tharoor, right? And Shashi Tharoor, why do you like him? You know, irrespective of your political ideology or your parents political ideology or your belief system for that matter, आपको शशि थरूर क्यों पसंद है या क्यों पसंद आ रहा है? सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी दुनिया है, उसके जैसे और 500 एमपी हैं, बट दैट मैन डिस्टिंक्स आउट हिमसेल्फ बाय व्हाट? थ्रू हिज स्पीच, थ्रू हिज राइटिंग। एंड व्हेन ही स्पीक्स इट लुक्स टू अस, if you have heard him speak in a, I mean, I've heard him speak live also, I've heard and I have, like, you know, heard him speak on YouTube, anywhere for that matter, you realize he's very very constructive. He's very very I mean, he has compartmentalized what he wants to say, and he argues and conveys that very beautifully. How has that happened? It happens via both. You start writing, you start thinking clearly. You start thinking clearly, you articulate better. You articulate better, you are able to convince a lot more people. Am I making sense to you? So you know what? You could be a top CA. You could be a top historian. You know, you have got through maybe, like, you know, Lady Shri Ram College, or you have gone through Hindu College, and maybe, like, you know, you have gone through Ashoka University, and perhaps, you know, you're going next to Oxford or Cambridge. But in order to be truly standing out, in order to be truly publicly successful, to have a public life where public appreciates you, public sees you rise, and and like, you know, your stardom, you do need to communicate. You know, if you don't do that, you're just one among the many, right? So these three things: one, that the strength of your discipline, definitely the strength of the discipline is best earned by doing what the discipline does. कॉमर्स है तो कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से करनी है, एक एक पेपर को अच्छे से पढ़ना है जो जो उसमें पढ़ रहे हैं। सेकेंड, उसको कॉम्प्लीमेंट करना है लॉजिक से, क्योंकि ये रियल टाइम एप्लीकेशन है, क्योंकि दिस एक्चुअली हेल्प्स मी। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि लॉजिक का पेपर लेने से या उसको कॉम्प्लीमेंट करने से, कॉमर्स के स्टडी को या हिस्ट्री के पेपर को लॉजिक से कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या होता है कि योर ओन एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन थिंग्स गोज अप। तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, तुम्हारे सामने कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता है विच डजंट साउंड ट्रू, विच इज जस्ट परहैप्स वेरी फोनी, which is just perhaps very dicey, उसमें लग रहा है कि नहीं कुछ फ्लॉ है, तो तुम उससे कम कन्विंस होगे। ठीक है, तो लॉजिक का पेपर इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैंने बोला कम्प्लीमेंटैरिटी। तो कम्प्लीमेंटैरिटी के लिए मैंने बोला कि देखो, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ हैबिट, और राइटिंग या स्पीकिंग ऑल्सो, लेट्स एड दैट ऑल्सो, बट राइटिंग आई वुड अगेन से, बिकॉज फॉर्मल वर्क इज ऑलवेज कम्युनिकेटेड वाया राइटिंग। चाहे ईमेल लिखना हो, चाहे प्रपोजल्स लिखने हो, या कुछ भी हो, राइटिंग का काम आता है। एक चौथा कंपोनेंट भी है यहाँ पे, जो कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी है हार्ड स्किल्स की। ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी थी, ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी सॉफ्ट स्किल्स की थी, लेकिन हार्ड स्किल्स भी है। हार्ड स्किल्स में तुम्हें मैं एक बात अब एम्फेसाइज करना चाहूंगा। देखो, जितने भी हार्ड स्किल्स हैं आज के तारीख में जो कि सेलिएबल हैं, जो कि बिकते हैं, ठीक है, दे आर वेरी टेक ओरिएंटेड और क्वांट ओरिएंटेड। ठीक है, तो तुम अगर कंफर्टेबल हो तो तुम्हें डेटा से रिलेटेड कोर्सेज, ठीक है, या अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम्हें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेज जरूर जरूर अपने सीवी पे लाना चाहिए। और इन सारी चीजों को लाने का पीरियड कौन सा है? तो ये यही तुम्हारा ग्रेजुएशन का टाइम है, जहां तुम अपने डिसिप्लिन पे काम करोगे कि तुमने हिस्ट्री ऑनर्स लिया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया, बीबीए लिया या कुछ भी लिया, ठीक है, तो तुम्हें उस डिसिप्लिन को तो शार्पन करनी है। जो जो उसमें डिफाइंड है आर्ग्यूमेंट्स, जो जो उसमें कोर्सेज हैं, करिकुलम है, वो सबका सब कुछ करना ही है। उसके साथ साथ उसको ऐड किससे करना है? सम लाइक यू नो हियर एंड देयर रीडिंग्स। जैसे मैंने एक सजेस्ट किया, फिलोसफी के लॉजिक के पेपर्स लेने जरूरी हैं थोड़े से, मुझे लगता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा पेपर जो सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी समझ देता हो, क्योंकि केवल अपने ही डिसिप्लिन का पेपर पढ़ोगे ऐसा नहीं होगा, माइनर पेपर्स भी होंगे। तो कॉमर्स लिया है तो साथ में लॉजिक एक 2 सेमेस्टर पढ़ लिया, 2 सेमेस्टर जो है उसे इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, 2 सेमेस्टर पॉलिटी पढ़ लिया, अगर जो जो मौका मिल रहा है। तो थोड़ा सा उस कैनवस को स्प्रेड करना है, केवल ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट भी होना चाहिए।
बीबीए कर रहे हैं और पता चला कि टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो बहुत अच्छा बीबीए का ग्रेजुएट नहीं बन पाएंगे। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पता चला कि इकोनॉमी के बारे में या किसी और डिसिप्लिन के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो नहीं, ये अवॉइड करना चाहिए। लॉजिक पढ़ लिया 2 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर कुछ और पढ़ लेंगे, 2 सेमेस्टर कोई नया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके बारे में कोई प्रोफेसर या कॉलेज में कोर्स फ्लोट हो रहा है, ब्लॉकचेन के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तुरंत जाकर के ले लेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, पुश करेंगे अपने आप को उसके लिए। तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए। इट शुड वर्क ऑन ऑल 3 fronts. And what are those 3 fronts? One, mastering your own discipline. Second, complementing your discipline. Whatever is needed, whatever is the need of the hour. And whatever is the need of hour, उसके लिए आप सीनियर्स को रीच आउट कीजिए, या सीनियर्स से ज्यादा अपने प्रोफेसर्स को रीच आउट कीजिए, दोज हु कैन सी अ बिट फार। ठीक है? या जो ऐसे लोग, अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट आती है जहां फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में कुछ ना कुछ लिखा जाता है, तो उस पर फोकस कर सकते हो थोड़ा कि अच्छा ठीक है, कह रहा है कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन वुड बी काइंड ऑफ डिसरप्टिव, इट्स गोइंग टू डिस्टॉर्ट द इकोनॉमिक सिचुएशंस, तो ठीक है, कैन आई जस्ट लर्न अ बिट मोर अबाउट इट। मुझे पता है तुम कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहे हो, तुम सब कुछ नहीं आएगा वहां जानने को तुम्हारे, बट हाँ, क्या थोड़ा बहुत सीख सकता हूँ ताकि मैं लेमैन ना लगूं। मुझे कुछ तो पता होना चाहिए कि अच्छा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन है क्या, ये कर क्या रही है, कैसे ऑपरेट करती है। ये बोल के पालना नहीं झाड़ना है कि नहीं मेरा तो बीबीए है, मेरा तो हिस्ट्री है, मेरा तो पॉल साइंस है। नहीं, इसी सोसाइटी में हो रहा है, तो अगर उधर वाला बंदा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता है, बीटेक करने वाला बंदा, तो ये उसका लॉस है, उसका नुकसान हो रहा है। इफ ही डजंट नो अबाउट पब्लिक पॉलिसी, उसका नुकसान हो रहा है। और अगर तुम नहीं जान रहे हो कि टेक्नोलॉजी के डोमेन में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, तो ये तुम्हारा नुकसान हो रहा है। ठीक है? सो जस्ट बी इंडिस्पेंसिबल, सो दैट कल की तारीख में जिस तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे उसको लगेगा कि अच्छा दिस मैन और वुमन ब्रिंग्स अ सेट ऑफ क्वालिटीज विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ व्हिच इज इरिप्लेसेबल। ये एक हिस्ट्री ग्रेजुएट है, बट she has a term paper on maybe technology, and she's a history graduate, but she has analyzed the current public policy challenge of e-rickshaw or electronic vehicles. तो जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन लाओगे, या उसके, या जिस भी डिसिप्लिन को पढ़ रहे हो उस डिसिप्लिन का जो टॉपिकल इवेंट है, उस टॉपिकल इवेंट्स को पे ग्रिप करने की जितनी ज्यादा कोशिश करोगे और जितना उसमें सक्सेसफुल होगे, वो तुम्हारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा लॉन्ग रन में। Am I making sense to you? Yes, sir. ओके, फाइन, आई विल टेक अ पॉज हियर। ठीक है? क्योंकि अभी तक मैंने तुमसे शुरुआत इस बात से की कि भाई तुम्हारा करियर चॉइसेस क्या है, उसके बाद आई काइंड ऑफ लेक्चर्ड यू ऑन कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है? अब तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ सवाल आ रहे हैं, तो वो मैं सवाल थोड़ी देर के लिए लूंगा, देन आई विल अगेन गो अहेड। तो एनी वन ऑफ यू लाइक कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, या अभी तक जो जो मैंने बोला है उससे रिलेटेड कोई सवाल है, या तुम्हें लगता है कि नहीं सर आपने ये बात तो बोली बट ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, या फिर ये बात आप कह रहे हो तो क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हो या कुछ और कहना चाह रहे हो। Basically, I'm trying to make sure that you have understood what I was saying rather than you have interpreted it wrongly. So I want to understand from you, what have you got? तुम्हारे दिमाग में क्या समझ बनी है अभी तक? Any one of you? Any girl, please? Yeah, please. Just stand up and say what do you want to come. And you are at the back, I can't see you properly, but yeah. Sir, you said that writing your thoughts will make your answer perfect. तो सर ऐसा भी तो हो सकता, ये भी तो हो सकता है कि अगर थॉट्स को लिखा नहीं गया हो या फिर बना के भी बोला गया हो तो वो अच्छा हो सकता है बिना लिखे भी। फाइन। देखो, मैंने बोला कि राइटिंग एक हैबिट तुमको इनकलकेट करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो इससे तुम्हारी सोच सीधी होती है, और सीधी होती है से मेरा मतलब ये है कि जो भी उसमें गिबरिश है, बैठ जाओ, यू डोंट हैव टू स्टैंड अप, जो भी उसमें गिबरिश है, जो भी उसमें XYZ अटैचमेंट्स हैं, वो गायब हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं तुम्हें अभी बोल दूं कि 4 मिनट तुम्हें बोलना है किसी बात पे, तुम ढेर सारे उसमें फिलर्स लेते आओगे कि ओके नाउ आई थिंक लाइक दैट बिकॉज इट वाज आल्सो, फिर सडनली कोई एक पॉइंट याद आएगा, यू विल हार्प ऑन दैट, देन यू वुड परहैप्स डाइग्रेस अ बिट, देन यू विल अगेन कंटिन्यू।
तो ये केवल तुम्हारा सच नहीं है, ये हम में से सारे लोगों का ऑलमोस्ट सच है। या अगर हमें किसी बात पे बोलने कहा जाए तो हम बहुत ज्यादा सोच समझ की तैयारी करके नहीं बोलते हैं, राइट। और मैंने इस वजह से कहा कि उससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमारा थॉट्स जो है ना वो डिसकलेक्टेड है, कलेक्टेड नहीं है एक जगह पे, अनकलेक्टेड थॉट्स हैं, और हम खींच खींच के ला रहे हैं दिमाग में अपने, सो दैट वी कुड स्पीक बाय आवर माउथ। राइटिंग से क्या होता है, वो फनल क्रिएट हो जाता है कि तुम्हारे दिमाग में जो रैंडम थॉट्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड हो करके आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। शशि थरूर बोल रहा होता है और कोई और दूसरा स्पीकर या नेता बोल रहा होता है, क्या फर्क लगता है? यही फर्क लगता है कि दिस मैन स्पीक्स इन अ कोहेरेंट मैनर, द अदर वन सीम्स टू डाइग्रेस, कुछ उतना अच्छा स्पीकर नहीं। तो अच्छा स्पीकर होना या बुरा स्पीकर होना, उसके बीच में यही फर्क है, केवल कोहेरेंसी का, कंसिस्टेंसी का, लॉजिकल कंसिस्टेंसी का। तो जब तुम लिखते हो ना, तो तुम्हारे थॉट्स के साथ ये प्रोसेस इनविजिबली शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट डिसिप्लिनिंग देम कि नहीं, ये रैंडम थॉट्स नहीं चलेगा। यू सी दीज आर वेरी रैंडम, अनडिसाइडेड, आई मीन ये बहुत कंस्ट्रक्टिव या बहुत फ्रूटफुल नहीं है हमारे तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है। तो और ये सबके माइंड में चल रहा है, ये रैंडमनेस जो है, वी ऑलमोस्ट गेट 60,000 थॉट्स पर डे। तो लिखने से होगा क्या कि इट विल बी स्ट्रीमलाइंड, तुम्हारा सोच नहीं बदल जाएगा, बट जो तुम सोच रहे हो उसको साफ साफ सोच सकोगे, मैं ये कह रहा हूं। तो सोच अच्छा हो जाएगा या सोच बुरा हो जाएगा, वो कंसर्न नहीं था मेरा। मेरा कंसर्न ये था कि जो भी सोचना चाहोगे बहुत क्लैरिटी के साथ सोच पाओगे, और वो जरूरी है आज की तारीख में, लॉन्ग टर्म करियर बेनिफिट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं उस एंगल से या उस परिप्रेक्ष्य से ये बात कह रहा था। डिड यू गेट दिस जो मैंने तुमसे कहा है अभी, और यू कैन क्रॉस क्वेश्चन। Yes, I got it. Fine. Anyone else? Yeah, please go ahead. Can you please elaborate about logical courses? As I'm a humanities student, so how it can be beneficial for me and more? Okay, fine. So I'll like, give you a very long, and I mean not a long, but I'll elaborate on this answer a bit. Academic disciplines, whether it's humanities, arts, commerce, technology, science, anything for that matter, all these disciplines are actually born from philosophy. Now you might wonder कि आप क्या बोल रहे हो सर, कि सारे के सारे disciplines philosophy से पैदा हुए हैं? Yes, all the disciplines are born from philosophy. Whether you look at it in the Indian knowledge system, or whether you look at it from a Western knowledge system. Ancient philosophers जो ग्रीक थे, उन्होंने ही सबसे पहले ब्रॉड बातें बतानी शुरू की थी, चाहे मेडिसिन को लेकर के हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी को लेकर के हो, चाहे फिजिक्स को लेकर के हो, चाहे मैथ्स को लेकर के हो। और इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी जो शीर्ष थे, जिनको दृष्टा कहते हैं हिंदी में, फिलोसफर्स, उन्होंने भी मोटी मोटी बातें बताना शुरू की थी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, मैथ्स के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, वगैरह वगैरह। वेस्टर्न फिलॉसफी में सिलोगिज्म करके एक कॉन्सेप्ट है, और सिलोगिज्म में हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट्स को कैसे समझा जाए कि वो एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे के विरोधाभास में हैं, या एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, या एक दूसरे से ऐसा एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे से एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो फिलॉसफी बीइंग मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स, व्हाट इट अचीव्स इज समथिंग वेरी वेरी फंडामेंटल। व्हाट इज दैट फंडामेंtal thing? It actually lets you understand what is the philosophy of something. So when you study economics in depth, when you study history in depth, when you study sociology in depth, or when you study technology in depth, you would be surprised to know all of them have an element of philosophical origins, or all of them have an underlying philosophy to them. ठीक है? तो जब भी तो फिलॉसफी पढ़ने से, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, या साइंस के बच्चे हो, या इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हो, फिलॉसफी पढ़ने से आपका भला ही होगा। दो तरीके से भला होगा। एक तो आपको अपने सब्जेक्ट के अंडरलाइन करंट के बारे में पता चलेगी कि अच्छा, इसके नीचे की सड़क ऐसी है, इस वजह से ये डिसिप्लिन ऐसा है, या इस डिसिप्लिन के अंदर ये अनसुलझे सवाल हैं, या फिर ये मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से इस डिसिप्लिन के आंसर्स ऐसे बन रहे हैं। तो फिलॉसफी पढ़ने से होगा क्या कि वो जो नॉलेज है ना किसी भी डिसिप्लिन का, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, कंप्यूटर साइंस का हो,
मेटलर्जी का हो या केमिस्ट्री का हो, उस डिसिप्लिन को आप सोशल कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से समझ पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि केवल आपने पढ़ लिया कि ठीक है वाटर प्लस हाइड्रोजन से, सॉरी ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से वाटर बनता है, ठीक है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, ठीक है, इस केमिस्ट्री को सोसाइटी के साथ कैसे जोड़ करके समझा जाए, या इसका सोसाइटी में क्या रिलेवेंस है, या फिर ये सोसाइटी में कहाँ कहाँ केमिस्ट्री अवेलेबल है, सोसाइटी में केमिस्ट्री किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही होती है, या केमिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन का जो लॉजिक है, केमिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन किस डायरेक्शन में बढ़ रही है और ये किस तरीके के सवाल खड़ा करेगी, किस तरीके के सवालों को जवाब देगी, इन सारे बातों का उस डिसिप्लिन का, बेसिकली उस डिसिप्लिन का जो रिलीवेंस है, उस डिसिप्लिन का जो कनेक्शन है बाकी जगहों पे, वो फिलॉसफी पढ़ने से ज्यादा जाहिर होता है। इट मेक्स यू मोर हॉलिस्टिक, ठीक है। फॉर योर इंफॉर्मेशन आई जस्ट मेंशन दिस फैक्ट ऑल्सो, जैसे आपने कहा लॉजिक का सर क्या असर है या क्या फायदा है लॉजिकल चीजें से, या लॉजिकल, अब जिस मैंने पार्टिकुलरली फॉर्मल और इनफॉर्मल लॉजिक नाम के पेपर्स का नाम लिया, मैंने बोला कि अगर डीयू में आते हो तो जरूर पढ़ो ये पेपर्स, या कहीं और भी जाते हो तो लॉजिक के पेपर्स मिलेंगे, वो पढ़ना। हर एक इंस्टीट्यूट में बीटेक वगैरह में भी तुमको फिलॉसफी या बाकी पेपर्स मिलते हैं वहां पढ़ने के लिए। उसका एक सिंपल सा रीजन है बेसिकली कि जितने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी है ना, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स या कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है वो एक एल्गोरिदम पे होता है। और एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है ये कहना कि अच्छा ठीक है, पहले इस सीढ़ी पे चढ़ोगे, फिर यहाँ से लेफ्ट लोगे, फिर उसके बाद 2 मीटर ऊपर जाओगे, फिर 30 डिग्री का एंगल बना करके वहां जाओगे। एल्गोरिदम इसी एक प्रोसेस को कहते हैं जो कि गवर्न करता है। जैसे तुम अभी इस क्लासरूम में बैठे हुए हो तो इसका एक एल्गोरिदम बनाया जा सकता है कि ठीक है, इंटर द स्कूल बिल्डिंग, वॉक 100 meters, देन टर्न टू योर लेफ्ट, देन टेक अ स्टेयर, walk 30 steps, then the classroom to your next is the classroom. Do I make sense to you? Yes or no? Yes, sir. समझ में? तो ये जो मैंने कहा तुमसे, ये क्या है? ये एक एल्गोरिदम है टू रीच एनीवन इन योर कॉलेज बिल्डिंग और इन योर स्कूल बिल्डिंग। तो कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर्स भी इसी तरीके से एल्गोरिदम पे काम करते हैं, जहां पे किसी कमांड या किसी जो जो रनअप होता है, वो रनअप यही काम करता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ टर्न करेगा, या यहाँ पे इस कमांड को फेस करेगा, इसका आउटकम ये होगा। तो लॉजिक फंडामेंटली देखो तो इज द लैंग्वेज यूज्ड एवरीवेयर, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आर्टिफिशियल लर्निंग, मशीन इंटेलिजेंस, कुछ भी हो, ठीक है, या मैथमेटिक्स में कोई एल्गोरिदम बैठ करके लिखे, या कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट बैठ करके एल्गोरिदम लिखे, या कोई प्रोडक्ट डेवलपर एल्गोरिदम बैठ करके लिखे, वहां पे लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो चेन ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब करना हो, कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्क्राइब करना हो, उस लहजे से मैंने कहा कि फिलॉसफी या लॉजिक का पढ़ना तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तुम्हें ये समझ में आएगा कि दूसरी बात जो ये है फिलॉसफी पढ़ने से, कि तुम्हें बाकी डिसिप्लिन्स के भी बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि फिलॉसफी इसेंस है। तो अगर इसेंस को पकड़ लिया तो हिस्ट्री में, फिलॉसफी में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, सब जगह उस इसेंस को देख पाओगे कि अच्छा ये हाउ इज इट ऑपरेटिंग, हाउ इज इट वर्किंग, हाउ इज इट गोइंग। समझ में आ रही है बात ये आपके? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Anyone else from the boys side, if somebody has a question to ask? Anyone from the backbenchers? Backbenchers के बारे में कहा जाए तो वो पढ़ते नहीं है, but just like anyone. I'm sure आप पढ़ते होंगे, but anybody like who has something to ask so that I understand कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा था, या you had some questions. Yeah, please. Like you told that एक बच्चा को हर चीज के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। एग्जाम्पल, एक ह्यूमैनिटीज के बच्चा को कॉमर्स के सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखना है, कॉमर्स के बच्चे को ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखना है, लाइक डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब एक बच्चा एक बात को चूज करके उसी सब्जेक्ट को पढ़े जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। Can you repeat the last part कि बच्चा एक ही सब्जेक्ट को चूज करके, लाइक जैसे कि हम ही है तो हमको कॉमर्स, हमको जैसे लॉ करना है सर, तो कॉमर्स का इकोनॉमिक ये सब तो मेरे लिए नेसेसरी नहीं है उसमें। जो सब्जेक्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसी सब्जेक्ट को पढ़ के हम अपना आगे का ये करें तो। देखो ये ना एक बहुत बड़ा मिसनोमर है, ये एक बहुत बड़ा भ्रांति फैला हुआ है कि तुम्हारे लिए इकोनॉमिक्स या कॉमर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लॉ करना चाहते हो, और अगर तुमने सही में रिसर्च की है इस बारे में, तो कंट्री के टॉप लॉयर्स को उठा करके देख लो, वो क्रिमिनल लॉ पे भी बहस करते हैं, वो मर्चेंट लॉ पे भी बहस किए हुए हैं। उनका सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज किसी भी एक मामले को लेकर के कम नहीं है।
ठीक है। तो केवल तुम तो ये मैं वही कह रहा हूं कि ये जो टेंडेंसी है ना टू कंपार्टमेंटलाइज कि अच्छा ये तो उधर का है, ये तो उधर का है, साइकोलॉजी पढ़ के हम क्या करेंगे, कौन जानता है कल की तारीख में क्रिमिनल लॉयर बन जाओ और बहुत अच्छे लॉयर बन जाओ, क्रिमिनल लॉयर, मजा आने लगे तुम्हें उस फील्ड में, बहुत बड़ा ब्रेक मिल जाए, तो साइकोलॉजी पढ़ना बहुत काम आ जाएगा ना क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्योंकि ह्यूमन साइकी के बारे में पढ़ोगे तो थोड़ा सोचोगे, थोड़ा समझोगे, थोड़ा रिफ्लेक्ट करोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ अब खिचड़ी बना लो, अपने सामने प्लेटर पे डाल लो सब कुछ और पता चला 5 चीज खा ही नहीं पाए। बट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू दिस दैट एटलीस्ट डू द बेयर मिनिमम एंड डेफिनेटली डू मोर देन द बेयर मिनिमम इफ यू आर इंटरेस्टेड इन थिंग्स। लॉ कर रहे हो लेकिन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है यार, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो। क्रिमिनल फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी अच्छे से एक्सप्लोर करो साथ में। लॉ कर रहे हो, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, इस वजह से मत छोड़ दो कि नहीं वो कॉमर्स काम का नहीं है। काम का तो सब कुछ है, ये बात समझ लो, बहुत क्लियरली समझ लो, काम का सब कुछ है। लॉ कर रहे हो और अगर स्पेस में इंटरेस्ट है ना, वो भी कॉम्बिनेशन बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और स्पेस वॉर्स का जो सिचुएशन आ रहा है आज के तारीख में कि स्पेस स्टेशन बने हुए हैं, तो स्पेस में किसका लॉ काम चलेगा, किसका लॉ काम करेगा। अगर एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट हो, लॉ पढ़ रहे हो, तो बहुत यूजफुल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? यस, नो? Yes, sir. राइट। तो ये बात तो दिमाग से निकाल ही दो कि यार ये दो तो बड़ा उल्टा पुल्टा कॉम्बिनेशन लग रहा है। नहीं, बिल्कुल उल्टा पुल्टा कॉम्बिनेशन नहीं है। और कुछ नहीं, अगर सच में मान लो कि उसका कोई करियर पॉइंट से वैल्यू नहीं है, तुम्हारा तो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन रहेगा ना कि यार मेरे को म्यूजिक पसंद था, मैंने म्यूजिक और साथ में हिस्ट्री पढ़ी है, नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज। कल के तारीख में हो सकता है तुम्हें किताब लिख दो कि ठीक है, इंडिया में जो म्यूजिक के राजघराना चलते आ रहे थे उनका क्या हिस्ट्री था। बहुत इंटरेस्टिंग काम हो गया, किसी ने वो काम किया। हो सकता है तुमको हार्वर्ड बुलाए कि सर आप यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे इस हिस्ट्री, इस बारे में डिस्कशन कीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि देखो, इफ यू आर ऑफ द, देखो दो चीजें हैं। एक है कि क्विक मनी बनाना है मेरे को वो टिक मार्क्स पूरे करने हैं करियर में, जल्दी से घर हो गया, जल्दी से 10 लाख का पैकेज हो गया, जल्दी से ये हो गया, जल्दी से वो हो गया, टिक मार्क्स पूरे करने हैं। तो जो बना बनाया रूट है, जो इजी मनी है, वो जाकर के लोग परस्यू करते हैं और करो। और वहां पे भी ये काम, इस चलते मैंने बोला कि वहां पे भी ये काम ही आएगा कि जिस डिसिप्लिन को पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, उसके साथ लॉजिक या इस तरीके के पेपर्स का कॉम्प्लीमेंटारिटी लाओ, और तीसरा उसको कॉम्प्लीमेंट करो, चाहे 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 तुम उसको हार्ड स्किल्स कॉम्प्लीमेंट करो या सॉफ्ट स्किल्स कॉम्प्लीमेंट करो। सॉफ्ट स्किल्स कॉम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा? राइटिंग होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए, ठीक है, ब्लॉग लिखो, दिखना चाहिए तुम्हारा क्रिएटिविटी, ठीक है, मीम्स बनाते हो तो मीम्स भी बनाओ, पुट इट ऑन योर ब्लॉग, डॉक्यूमेंट इट, ठीक है, बिकॉज वर्ल्ड आउट देयर इज वेटिंग टू सी योर क्रिएटिविटी। उसको ना देखो, मार्केटिंग अगर नहीं कर पाओगे खुद की तो ये प्रॉब्लम है। तो इस चलते लिखना बहुत जरूरी है। उस मामले में लिखना एक तरीके से अपने आप की मार्केटिंग करना। यू नो हाउ टू आर्टिकुलेट योरसेल्फ, यू नो व्हाट टू से, यू नो व्हाट टू पिच, एंड यू नो दैट ओके फाइन, व्हाट इज इट दैट विल टेक दिस पर्सन। तो जब ये स्टडी करना, जब इस बात की, और लॉजिक पढ़ने से, अपने डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करने से और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स लाने से, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो या हार्ड स्किल्स, चाहे डेटा साइंस से रिलेटेड काम करो या कोडिंग से रिलेटेड काम करो, क्योंकि जरूरी नहीं है केवल मैथ्स ही वाले कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोई बीटेक नहीं हूं, बट आई डू कोडिंग, आई मीन आई डू राइट प्रोग्राम्स इन आर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि तुम बीटेक की हो तभी प्रोग्राम लिख सकते हो या कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डिसिप्लिन का, ह्यूमैनिटीज का बच्चा कर सकता है, किसी और डिसिप्लिन का बच्चा कर सकता है, साइकोलॉजी का बच्चा करता है, और वेस्ट में या वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में तो करते ही करते हैं। हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड धीरे धीरे, कोर्सेज इंटीग्रेट हो रहे हैं, कोर्सेज बहुत ज्यादा वाइड हो रहे हैं, तो ये ट्रेंड धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो भी नैरो डाउन चॉइसेस भी है, साइकोलॉजी हो जाए, ह्यूमैनिटीज हो जाए, साइकोलॉजी हो जाए, सोशियोलॉजी हो जाए, फिलोसफी हो जाए, या बीकॉम हो जाए, या बीबीए हो जाए, या बीवीई हो जाए, कुछ भी इसमें से चॉइसेस लो, उन चॉइसेस, अगर तुम्हें मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो डेफिनेटली तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स गेन करने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स गेन करने के साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म के भी बारे में सोच रहे हो तो मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा डिसिप्लिन के बाहर की भी पढ़ाई कर लो, चाहे वो फिलॉसफी का लॉजिक हो, इकोनॉमिक्स का माइक्रो मैक्रो हो, सोशियोलॉजी का सोसाइटी एंड इंडिविजुअल हो, या कोई भी और कॉम्बिनेशन हो।
तुम्हारे लॉन्ग रन ग्रोथ के लिए, लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव के लिए वो इंटरमिंगलेंस या वो क्रॉस डिसिप्लिनरी स्टडी बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो जैसे मैं अपने बारे में तुमसे शेयर कर सकता हूँ कि आई स्टडीड इकोनॉमिक्स, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अलावा लाइक यू नो आई हैड अ वाइडर इंटरेस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स। आई स्टडीड बिट ऑफ फिलोसफी, आई स्टडीड बिट ऑफ सोशियोलॉजी। और जो पेपर्स मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, वन इज हाईली मैथमेटिकल पेपर, मैं मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ाता हूँ, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पेपर। दूसरा पेपर जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का पेपर है, एंड दैट्स अ लॉट मोर डाइवर्स पेपर। वो पेपर क्या कर रहा है, वो पेपर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक यू नो सेवरल थिंग्स, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ब्ला ब्ला। तो तुम कह सकते हो सर आपको तो पढ़ाना था, आपका टीचिंग करियर, तो आप इधर उधर सब जगह से ज्ञान इकट्ठा करते हो, आपको आपके लिए सूट करता है, मेरे लिए नहीं सूट करता। लेकिन ऐसा है नहीं। तुम कोई भी फील्ड चूज करो, उस फील्ड में जो तुम्हारे एक्सेलेंट लोग हैं, ठीक है, तुम देखोगे कि दे नो मच मोर देन देयर लिमिटेड डिसिप्लिन। और तुम्हें ये लगता है कि ठीक है सर वो तो तब का तब कर लेंगे, नहीं, मैं कह रहा हूं बस ये अंडरग्रेड लेवल पे ना देखो, फॉर्मल टीचिंग का मौका, फॉर्मली क्लासरूम में बैठ करके पढ़ने का मौका हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों को बैचलर्स के बाद ना मिले, या तुम ना खुद करना चाहो कि जॉब लग गई या कुछ और बिजनेस करना शुरू कर दिया उसके बाद, या कुछ भी इस तरीके से। तो वो जो 3 साल है, वो जो 4 साल है ना, उन 3 साल में, 4 साल में इस स्ट्रैटेजी को अपने लाइफ के लर्निंग का हिस्सा बनो। ये करोगे, दिस विल सेल यू लॉन्गर। भले तुम्हें प्रोफेसर ना बनना हो, तुम्हें कुछ और, तुम्हें एक बिजनेस खड़ा करना हो, बट स्टिल इफ यू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड योर डिसिप्लिन, इट विल जस्ट हेल्प यू बिजनेस। Even if money is the purpose, it will help you mint more money. It will help you land less in troubles. Okay, so that's a way to look at it. Anyone else? You have something to add or ask? थर्ड रो, लाइक यू नो, दो रो से तो बच्चों ने पूछ लिया, तीसरे रो से माई लेफ्ट मोस्ट। Can you be loud? Can you be loud? I can't hear you. Anyone from the third row? Yes, no. Yeah. As you said, we should be practice writing. So writing on Mm-hmm. computer or writing on a notepad does make a difference with thoughts. Like nowadays, I'm not able to write on notepad, like physically form. So I like writing on computers on a notepad. So is it really make difference? See, I mean, I would have said it doesn't make a difference, but you know, recently I've come across a study, you know, and it's done by neuroscientists, and they have said that you know, too much of digital interaction is a barrier to your organic growth of intelligence. So I would still suggest make a mix, you know, कि ठीक है किसी दिन लैपटॉप पे बैठ के लिख लिया, किसी दिन पेन एंड पेपर होना चाहिए, मेरा ये कहना है। तुम्हारे हाथों में कलम होनी चाहिए और एक पेपर होना चाहिए जिसपे तुम लिखो कुछ, ठीक है। क्योंकि देखो कंप्यूटर के साथ एक प्रॉब्लम तो तुम्हें जरूर समझ में आएगी, यहाँ पे भी एक लॉन्ग टर्म, कि कंप्यूटर के साथ वो प्रिसीजन देर से आएगा। क्यों? क्योंकि तुम पहले कुछ गिबरिश लिख दोगे, फिर उसको मिटा करके दोबारा लिख दोगे। बट पेन एंड पेपर में हर एक वर्ड लिखने से पहले तुम 2 बार ध्यान से सोचोगे, क्योंकि वो बार बार पेपर गंदा नहीं करना है तुम्हें। डू आई मेक सेंस टू यू? So it will train your mental muscles better than just writing on laptop. But yeah, it's no harm writing on laptop. Why? Because the world today is paced in that direction. So you should be accustomed to, like, you know, write long paragraphs, short paragraphs, and that too very quickly, deliverably, in a deliverable manner on the laptop as well. So make a mix, you know, कि ठीक है 2 दिन वहां पे भी कर लेंगे, but 2 दिन इधर भी कर लेंगे। Am I making sense to you? Yeah. Okay, fine. So now towards the third part, like, you know, I thought we would not be utilizing the 1 hour and 30 minutes, but I surely see that, you know, it's going to get used. देखो अभी तक जो मैंने तुमसे बोला, it was very loose, but very, I mean, not very loose, but it was very general and precise
suggestions to you in terms of whatever तुम sociology पढ़ो, philosophy पढ़ो, blah 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 whatever. I now want to narrow it down a bit and tell you in particular about few things. करियर ट्रैक्स जो हैं यहाँ से पॉसिबल, देखो एक तो ट्रैक ये है कि तुम +2 के बाद जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, एक स्ट्रीम ऐसा है जो कॉमर्स परस्यू करता है। कॉमर्स परस्यू करने के साथ साथ वैसे बच्चे जो हैं, ठीक है, एंड आई विल थ्रो नेम्स, यू कैन नोट इट, तुम बाद में उसके बारे में सर्च कर सकते हो कि अच्छा ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। कॉमर्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, घर में कोई उनके कर रहा होता है या उनके आस पड़ोस पे कोई कर रहा होता है, उसको देख करके इंस्पायर्ड है या दे फील लाइक डूइंग इट। समवन कुड बी लाइक कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। सीए इज मोर कैलकुलेशंस एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट मोर मैथ्स देन कंपनी सेक्रेटरी। बहुत सारे लोग कॉमर्स करते हैं, कॉमर्स के साथ साथ लॉ करते हैं और कंपनी सेक्रेटरी भी पूरा करते हैं। ये भी एक ट्रेजेक्ट्री देखी है मैंने, बहुत कॉमन ट्रेजेक्ट्री है। बट या इन सारे जगहों पे ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं जो मैंने कहा है तुम्हें पहले। जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करोगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करोगे और जितना ज्यादा उस डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करोगे, दैट टुगेदर विल मेक यू अ कंप्लीट टोटल पैकेज व्हिच इज सेलिएबल इन द वर्ल्ड। तो एक तो हो गया बीकॉम किया, साथ में लॉ कर लिया, साथ में सीए या सीएस कर लिया, या बीकॉम किया साथ में सीए कर लिया, बीकॉम किया साथ में सीएस कर लिया, बहुत मन किया लॉ भी कर लिया। सीएस वाले लोग लॉ ज्यादा करते हैं, ये एक पैटर्न देखने को मिलता है थ्रू माय अंडरस्टैंडिंग। Secondly, people from different disciplines like say literature, maybe or commerce, or say economics or history or sociology, they also have a flair for law. वो law pursue करते हैं bachelor's के बाद जाकर के दोबारा, ठीक है। That's also a good combination. If you are interested, you like to talk, you like to argue, you like to debate, and speaking is something on which you are working, you must do that track. Law could be a very rewarding career that way, ठीक है। तीसरा है कि बहुत सारे लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग, ठीक है। साइकोलॉजी इज अ डिसिप्लिन व्हिच इज गोइंग टू गेट मच मोर इन डिमांड इन फ्यूचर आल्सो। साइकोलॉजी एंड बिजनेस, बोथ द डिसिप्लिन्स। इनफैक्ट बिजनेस में हर एक डायरेक्शन से अब लोग आएंगे, ठीक है, या एंटरप्रेन्योर्स का नंबर्स बढ़ते जाएगा आने वाले टाइम में। तो बिजनेस स्किल्स का एमबीए से कोई खास लेना देना नहीं है इमीडिएटली, बट हाँ बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग वाले लोग बढ़ेंगे समाज में। और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के लिए, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी समाज में, तो इसके लिए जो भी आदमी बिजनेस माइंड का है, जिसको भी बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट रास्ता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी, तुम्हें जो साइकोलॉजी का ट्रैक है, साइकोलॉजी वाले ट्रैक के बच्चे बहुत अच्छा रिसर्च, बहुत अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसका परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन परस्यू किया, उसमें भी यही सारे प्रिंसिपल्स लगाएं, कॉम्प्लीमेंटारिटी, स्ट्रेंथनिंग द डिसिप्लिन, टेकिंग समथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम माय डिसिप्लिन, ठीक है। क्योंकि जैसे जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनको फिलॉसफी ऑफ माइंड भी पढ़ना चाहिए, जो फिलॉसफी का पेपर है, राइट। तो ये काम करते रहना है, कॉम्प्लीमेंटारिटी खोजना है, स्ट्रेंथन कहाँ से और हो सकता है, कौन सा इनपुट मिसिंग है वो लाना है, कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है विच इज अ न्यूली इमर्जिंग डिसिप्लिन एंड इज गोइंग टू बी मच मोर बेनिफिशियल। अनदर डिसिप्लिन विच आई इंटेंड टू एम्फसाइज इज सोशियोलॉजी, ठीक है। जिन भी लोगों का सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या डेवलपमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट है, ठीक है, उनके लिए सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इज गोइंग टू प्रूव मच मोर वैल्यूएबल, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये दोनों जो है ये सोसाइटी में ही नीडेड है या सोसाइटी का हिस्सा है। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस इनको अचीव करने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट अचीव हो या पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव की इफिशियंसी अचीव हो। वहां पे सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इज अ वेरी गुड मार्कर, ठीक है। लास्टली सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ लोगों ने कहा था। देखो सिविल सर्विसेज के लिए आज की तारीख में कोई भी डिसिप्लिन इज नॉट अ टिकट, कोई भी डिसिप्लिन इज नॉट रूलिंग आउट टू बी ए टिकट, ठीक है। तुम कुछ भी पढ़ना चाहते हो, सिविल सर्वेंट कोई भी पेपर के ऑप्शंस लेकर के जरूर बन सकते हो, ठीक है। उसको लेकर के कोई अभी ये मत दिमाग में वहम पालो या ये मत दिमाग में अपने आप को फील गुड कराओ कि ये पेपर लेने से मेरा चांसेस ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं। आपका चांसेस जितना ज्यादा आप मेहनत करते हैं डेडिकेट होकर के उस एग्जाम के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट, उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे लगता है ध्यान देने की है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर के ना तुम्हें एक बात सोचती रहनी पड़ेगी या तुम्हें एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी करियर ट्रैक तुम चुनते हो, ठीक है, जो भी करियर ट्रैक तुम चुनते हो उस करियर ट्रैक में, जो भी करियर ट्रैक तुम चुनते हो उस करियर ट्रैक में तुम्हारे पास किस तरीके के जॉब्स आ रहे हैं भविष्य में,
इसके लिए काउंसलिंग जरूर सीक आउट करोगे, समझे? ये बात ना मैं तुमसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सुनना. एंड दिस इज particularly a problem in like in people like coming from like not the metro cities, नॉन मेट्रो जितने भी शहर हैं वहां बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस कम होती है. तो मैं इस वजह से तुम्हारे लिए ये बात एम्फेसाइज करके कह रहा हूँ कि करियर अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक करने के लिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें देखते रहना है, चाहे वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ो या इंटरनेशनल ILO की रिपोर्ट्स पढ़ो. कुछ ना कुछ पढ़ करके तुम्हें ये बात समझने का अंदाजा होना चाहिए कि भविष्य किसका है. आई एम मेकिंग सेंस टू यू? अब आज के तारीख में अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो तो इसके बारे में लेकर के थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचो कि अच्छा ठीक है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद या चैट जीपीटी के आने के बाद ये जॉब रहेगा या फिर कोई और जॉब ऐसा है विच विल अज्यूम मोर प्रोमिनेंस. तो अब एक नया आ गया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर. प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियर इसेंशियली गोज ऑन टू आस्क पीपल और आस्क द सॉफ्टवेयर राइट क्वेश्चंस. किसी ने कभी सोचा था सपने में कि सही सवाल करना एक नौकरी हो जाएगी? टेक्निकली वो वही काम कर रहा है. प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज एसेंशियली गिविंग राइट प्रॉम्प्ट्स जिससे कि सही जवाब निकल करके आए और वो सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना काम मेरे मुताबिक कर सके या मेरा काम मैं उसे निकलवा सकूं, सो दैट आई कुड आस्क हिम बेटर, आई कुड आस्क हिम बेटर क्वेश्चंस और मैं अपना काम निकलवा सकूं उससे. तो तुम्हें ये बात ना तो तुम्हें किसी को पता नहीं है. ऐसा नहीं कि मैं प्रोफेसर हूं तो मुझे पता है भविष्य कैसा होगा या कोई ज्योतिषी बैठा हुआ है उसको पता है. नो वन नोज इट. एज ऑफ टुडे द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू डिसरप्शंस, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, सोशल डिसरप्शंस, वॉर्स हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट वेव आ रहा है. तो फ्यूचर बहुत ज्यादा केओटिक है. इट्स नॉट अ स्टेबल टाइम इन विच वी आर लिविंग. तो व्हाट माय एडवाइस टू यू इज वर्क ऑन द फंडामेंटल्स, ठीक है, बट बी अगाइल टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स, कॉम्प्लीमेंट योर स्किल्स, ठीक है. कोई भी डिसिप्लिन पकड़ो. मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये आने वाला समय सबके लिए उतना ही अच्छा है, सबके लिए उतना ही बुरा है. इफ यू लैक ऑन एनी ऑफ दोज 3 थिंग्स, तुम्हारे खुद के डिसिप्लिन का नॉलेज तुम्हें खूब अच्छे से आना चाहिए. दूसरा, कॉम्प्लीमेंटारिटी होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनैरिटी होनी चाहिए कि ठीक है कॉमर्स पढ़ा है और सोशियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है तो यार ऐसा क्यों है? कॉमर्स पढ़े हो तो कॉमर्स के अलावा और भी तो कुछ किए, क्यों नहीं किए? हिस्ट्री ही पढ़ लेते, थोड़ा जानते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हारा थोड़ा सा और भी इंटरेस्ट है. तो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होते जा रही हैं विथ एवरी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. और तीसरा मैंने कहा कॉम्प्लीमेंटारिटी, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स की. हाँ सर मुझे कोडिंग भी आती है, मुझे डेटा पे भी कुछ काम आता है, 1-2 ही सही, बट ये तुम्हें अपने नेक्स्ट 3 साल के करियर में जरूर तुम्हारे CV पे होना चाहिए. आई डू नॉट सी अ सिंगल स्टूडेंट एज ऑफ टुडे इन माय टीचिंग करियर हु इज डूइंग गुड विदाउट मास्टरिंग देमसेल्फ ऑन दोज 3 फ्रंट्स. जितने भी बच्चे बहुत सक्सेसफुल करियर बना रहे हैं मेरी नजर में उन्होंने इन तीनों जगहों पे अच्छा किया है, ठीक है. इंटरडिसिप्लिनैरिटी है, अपने डिसिप्लिन में बहुत अच्छा काम किया है. तीसरा कॉम्प्लीमेंटारिटी है. और इन तीनों चीजों को हाईलाइट कैसे करते हैं? वो एक ब्लॉग मेंटेन करते हैं, ठीक है. एक ब्लॉग मेंटेन करते हैं, लिखते हैं, उस पर पोस्ट लिखते हैं या उस पर अगर मीम्स बनाते हो, क्रिएटिव हो तो इंस्टाग्राम पेज हैंडल बनाओ, इंस्टाग्राम पेज हैंडल चलाओ, ठीक है. That essentially sells you, that essentially portrays to me who you are. Okay, with this I think I have lectured you enough and there's a lot in it for you to follow. I'll just stop here, and if anybody has a question they could ask or you could just go as I've suggest. I mean, that is it from my side. Questions you guys have? About the college as well. You can ask about the college as well. What do you college? Course, anything. Yeah, if you have particular questions about a DU college or a course, I would be more than willing to answer that. No questions? Yeah. Nothing? Oh, okay, fine. Please go ahead. Sir, as now I want to do my career in chartered accountancy, but I want as a part-time B. I'm not sure what should I take, BCom or BBA in the career. No,
If you want to make a career in chartered accountancy, go for a BCom degree. That's more reasonable thing to do, you know, because that's more reasonable thing to do because it align. I've generally noticed that CA is a like people require some kind of dedication to finish that course. Having a commerce degree in your undergrad would help you sail through that, right? But yeah, don't forget to work on communication, writing, doing something beyond the CA curriculum. That's चाहे CFA करना चाहते हैं बहुत सारे लोग actually pursue करते हैं अगर मैथ्स में अच्छे हो तो these are also things that are added on and they could catapult your career to a good height. This idea, please ask. सर जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट देयर प्रोस, मतलब क्या क्या अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अच्छे अच्छे टीचर्स है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर है, अच्छे अच्छे कोर्सेज है, बट एक साइड तो ये भी कह रहा है कि वो लाइक इन्वायरमेंट वहाँ का वो वैसा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आप कॉलेज में पूरे दिन 24 घंटा तो नहीं रह सकते, उसके बाद आप बाहर जाइएगा तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस कहीं ना कहीं वो हार्मफुल हो जाता है कहीं ना कहीं, बिकॉज एक जगह पे कंसंट्रेट आदमी नहीं कर पाता, कई बार डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइड मींस दिल्ली आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो इस सवाल का एक्चुअल जवाब तब मैं दे पाऊंगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारे पास और क्या क्या ऑप्शंस है इसी जगह पे जाकर। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है या हार्वर्ड जाना है तो मैं तो हार्वर्ड चुन लूंगा, राइट? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका में वेस्टर्न कल्चर है या क्या है, मेरे लिए वो ब्रांड बहुत अच्छा है, मेरे लिए वहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं और वहाँ की जो कमियां हैं वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि वहाँ जाने से आई वुड बी एबल टू अचीव मच मोर इन माई करियर। सिंपल सा पॉइंट ये है, ठीक है? मोरल डिबेट में नहीं फंसना है तुम्हें कि नहीं अच्छी जगह है, कल्चर खराब है, ये तुम्हारा पैरामीटर ही नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पैरामीटर होना चाहिए क्या मेरे पास और कितने ऑप्शंस हैं, ऑक्सफोर्ड जाने का मौका मिल रहा है, अशोका यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिल रहा है, शिवनाथ यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिल रहा है, IIT दिल्ली जाने का मौका मिल रहा है, या IIM इंदौर जाने का मौका मिल रहा है 5 ईयर MBA प्रोग्राम में, तब पूछ सकते हो ये सवाल कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने में फायदा है या नुकसान, राइट? एब्सोल्युटली हर एक जगह का प्रो एंड कॉन्स है, और जो प्रो है कि नहीं बहुत अच्छे टीचर हैं ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बुरे टीचर्स हैं और अच्छे टीचर्स भी हैं, ठीक है? तो एवरी प्लेस हैज इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है? अच्छा ही और क्या है कि इतने ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स होता है तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बट उसका एक नुकसान भी है, पीपल माइट गेट लॉस्ट। People might get lost. Hello? Yes, sir. People might get lost, इतना ज्यादा अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए तुम्हारे सामने, मैं आकर के अभी तुम्हें ना 200 करियर का लिस्ट दे दूं, हो सकता है 10 लोगों को लगेगा कि बेकारी उनके लेक्चर में 1.5 घंटा टाइम वेस्ट कर दिए, 200 कोर्सेज बता दिए हैं, 200 लेक्चर, 200 करियर ऑप्शन बता दिए, अब क्या चुने इसमें से हम बैठ करके? तो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गया, इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया कि आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई सेल्फ वेल। बट एक दूसरा ये भी चांस है कि नहीं, मुझे पता है कि वहां जाकर के अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आई विल ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, आई विल एक्सेप्ट। सो चूज योर माइंडसेट, तुम जो कह रहे हो कि सर प्रॉब्लम्स हैं, हर एक जगह प्रॉब्लम्स और हर एक जगह अच्छी बात है, तुम ये देखो कि तुमको ऑप्टिमाइज करना है कि गिवन द चॉइसेस दैट आई हैव, which is the best choice for me, right? Am I making sense to you? Yes. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अगर पटना यूनिवर्सिटी ऑप्शन है तो ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा रांची यूनिवर्सिटी ऑप्शन है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डेफिनेटली बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अगर ऑक्सफोर्ड ऑप्शन है तो ऑक्सफोर्ड बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा शिवनाथर ऑप्शन है तो शिवनाथर बेहतर यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अशोका ऑप्शन है तो अशोका बेहतर यूनिवर्सिटी है। लेकिन it depends what you have on the plate, right? या DU में ही इतने कॉलेजेस हैं, स्टीफेंस मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, SRCC मिल रहा है बहुत अच्छा है, हिंदू नॉर्थ कैंपस के कोई भी कॉलेज मिल रहे हैं बहुत अच्छा है।
उसमें से चॉइसेस डिपेंड करता है ना कि कॉलेज अच्छा है या बुरा है, डिपेंड ऑन द चॉइस दैट आई हैव, बिकॉज everybody is wanting to get up, everybody is wanting to have a higher you know higher thing to grab. तो ये वहां पे डिपेंड करता है, राइट? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ करके बनना है, या पटना में पढ़ के बनना है, या सहरसा में पढ़ के बनना है, या मुजफ्फरपुर में पढ़ के बनना है, टेक योर कॉल, बट या इट वुड बी ऑलवेज गुड इफ यू हैव अ चांस एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. व्हाई? बिकॉज यू देखो, इंसान एक बात बहुत बेसिक समझ लो, मैंने इस चलते फंडामेंटल्स पे फोकस किया था अपनी पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन में. फंडामेंटल ये है कि यू वर्क हार्ड व्हेन यू आर when you are pushed for it, when you are in competition. जिसको ये लगता है ना कि नहीं, मैं कोने में एक कमरा ले लूंगा और मैं सीए कर लूंगा या सीएफए कर लूंगा या एक्चुअरी का कोर्स कंप्लीट कर लूंगा या कंपनी सेक्रेटरी कर लूंगा अकेले में बैठ करके, आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है? क्योंकि जिस डिस्ट्रैक्शन से भाग करके आप अकेले कोने में, इससे बेहतर है कि मैं मार्केट में जाऊं जहां पे सारे लोग पहुंच रहे हैं, सो दैट आई कम्पीट विद देम, आई हैव अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड आई एक्सेल देम. Do I make sense to you? Anyone else? Yeah, please. As I am a common student, what should I do? मतलब 5 साल का लॉ में मतलब आईसी कोर्सेज करे 5 साल वाला, या फिर बीकॉम प्लस, what is best for me? Can you? Your voice is breaking. Could you repeat yourself? सर जैसे लॉ करना है मुझे, तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तो मैं बीकॉम प्लस लॉ करूं या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स? पहले तो एक बार ये पता करो अपने आप से, खुद से पूछ करके लॉ क्यों करना है. पापा मम्मी लॉयर हैं, घर में कोई लॉयर है इस वजह से? ठीक है, तो डिबेट्स आर्ग्यूमेंट्स इसमें इंटरेस्ट है या करते हो? नहीं करते हो? हाँ ना? बिकॉज तुम सर हिला रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा, काफी दूर स्क्रीन पे, तो यस और नो बोलोगे तो पता चलेगा. नो, फाइन. देखो, अगर लीगल रिसर्च करना है तो बहुत ग्रेट करियर तो नहीं है आज की तारीख में कि बैठ करके लॉयर बनना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा करियर है लॉ करना. एंड दैट्स इनहांस्ड बाय योर एबिलिटी टू क्रॉस काउंटर, टू डिबेट, टू आर्ग्यू, टू आर्टिकुलेट एंड ऑल दैट. तो जो तुम अपने बारे में बता रहे हो उस हिसाब से मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि 5 ईयर लॉ का प्रोग्राम करो. बीकॉम करो, ठीक है, एंड टेक सम वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर योर बीकॉम. और फिर भी मन करे कि लॉ करना है तो कर लेना लॉ उस समय. अभी जब डायलेमा है तो डायलेमा में फंस करके हम क्यों 5 साल किसी डिग्री को दें? और जबकि मेरे पास खुद एक चॉइस है, अगर बीए एलएलबी करना है 3 साल का, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, कैंपस लॉ सेंटर है 3 साल का कोर्सेज, या फिर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं. अब तो एनएलएस बैंगलोर भी ऑफर करने लगा है 3 साल का लॉ डिग्री आफ्टर बैचलर्स, राइट? तो वो परस्यू कर सकते हो. उसके लिए क्या है, जब अनसर्टेनिटी है तो हम क्यों उसमें पूरा पांव फंसाएं अपना? वो तो गले का फांस बन जाएगा ना फिर 5 साल के लिए. और लॉ स्कूल्स की फीस बहुत महंगी है, आई मीन अननेसेसरली हाइप्ड है मुझे लगता है. हर एक एनएलएस बैंगलोर के बाद हर एक स्टेट में लॉ स्कूल खुल गए हैं, और सब मुझे लगता है बहुत अनाप शनाप पैसा चार्ज कर रहे होते हैं. तो वो 5 साल का कमिटमेंट दे करके वहां से निकलो, 30,000 का क्लर्कशिप मिल रहा है, तो ऐसा क्यों काम करोगे? इससे बढ़िया बीकॉम का डिग्री ले लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से, ढंग से मेहनत करो, ये काम करो जो मैंने बोला है, ढंग का प्लेसमेंट लग जाएगा यार. career wise I am telling you, unless and until it's a burning desire to study law, then well for by all means go for law, right? But it looks to me that you're uncertain about that, so it's better not to pursue that wholeheartedly as of now. You put your foot there when you're firm about it, right? Okay, next. Yeah. सर मेरे माइंड के हमेशा बैक में एक थॉट रहता है कि हमको एज माय ग्रेजुएशन डिग्री हमको लॉ करना है, उसका पीजी में हमको एमबीए करना है, तो क्या मेरे जॉब प्रोफाइल में वेटेज रहेगा लॉ का अगर हम एमबीए से एक जॉब लेने जाए तो? तुम पहले लॉ करना चाहते हो, उसके बाद एमबीए करना चाहते हो, हाँ. राइट? देखो, अगर तुम
तो लॉ करना चाहते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शंस तो बेसिकली यही है कि तुम 5 ईयर लॉ डिग्री लो अभी +2 के बाद, ठीक है, और उसके बाद MBA का एग्जाम्स लिखो, ठीक है। 5 ईयर लॉ डिग्री लेने में अगर तुम ढंग के जगह से नहीं लॉ कर पा रहे हो, ढंग की जगह से लॉ नहीं परस्यू कर रहे हो, तो मुझे ना ये प्रॉब्लम, मुझे इस प्लान के साथ मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रही है तुम्हारे। दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, दोनों कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। लॉ भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, MBA भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो दो प्रोफेशनल कोर्स करने में ना मुझे लग रहा है कि तुम ये सोच ही नहीं रहे हो कि तुम्हारा ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। भाई लॉ 5 साल पढ़ोगे, 10 लाख वहां खर्चा करोगे, 15 लाख वहां खर्चा करोगे, या ज्यादा पता नहीं व्हाट्स द फीस लाइक। फिर MBA करने जाओगे, अगर ढंग के MBA में जाते हो तो फिर वहां पे भी 30 लाख 40 लाख खर्च करोगे पैसे। तो इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं? अगर इतना पैसा है तो बिजनेस कर लो ना फिर। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? मतलब ये मुझे एक बड़ा ही फिगमेंटेशन लग रहा है कि अच्छा सब कोई कुछ कुछ कर रहा है तो हम भी एक चुन लिए कि अच्छा सुनो हम लॉ करेंगे उसके बाद MBA करेंगे। रीजन क्या है भाई? कोई रीजन नहीं है। तो फैमिली बैकग्राउंड या तो फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का होगा या तो लॉ का होगा। लॉ का है। तो लॉ का है तो लॉ करो, फिर MBA, या तो अगर फैमिली को कन्विंस करना है या फैमिली के बने बनाए रास्ते पे चलना है तो लॉ परस्यू करो, फिर MBA का उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। फिर लॉ करो और जितना जल्दी आकर के बाबूजी के चेंबर में या मदर के चेंबर में बैठोगे उतना जल्दी फायदा होगा तुम्हारा। फिर कि ठीक है कि केसेस आ रहे हैं पेरेंट्स के या ग्रैंडफादर के या अंकल के, जो भी हैं, जो भी तुम्हारे फैमिली में है लॉयर्स, उनके केसेस तुम्हें मिलेंगे फिर वहां से। और MBA करने जाओगे 2 साल, वो पूछेंगे ना कि भाई 5 साल पढ़ाई किया अभी भी नहीं आया, क्या कर रहे हो? तो तुम्हारा 2 साल का नुकसान होगा। नुकसान दो तरीके का, एक तो पैसा खर्च करोगे MBA में, और जो यहाँ कमाई का नुकसान होगा तुम्हारा। तो आई डोंट सी इट एज अ वेरी planned or thought out plan. Anyone else? फिर सोशियोलॉजी में क्या क्या करिएगा? Louder. सोशियोलॉजी में क्या क्या करिएगा? There's echo. Can you just repeat yourself slowly? सोशियोलॉजी। ओके फाइन। देखो सोशियोलॉजी का जो करियर है ना, इट्स काइंड ऑफ एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड करियर, ठीक है। सोशियोलॉजी के साथ फायदा ये है कि आने वाले टाइम में, ठीक है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी कंट्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि चुनाव या इलेक्शंस जो है दे आर इसेंशियली बिकमिंग everybody's like say ड्रीम। लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, इलेक्शंस जो है या जो चुनाव का प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वजह से सोशल एनालिस्ट की या सोशियोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है। या ऐसे लोग अगर ढंग का रिसर्च करें तो दे कैन बी रियली रियली गुड एडवाइजर्स इन MNCs ऑल्सो। थोड़ा सा उनको कंटेम्प्रेरीनेस अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। आप ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी करने लगोगे तब तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, आई कैन टेल यू, PhD मैनेजमेंट जो होता है, बहुत सारे मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में PhD के एडमिशंस में वो सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड के बच्चों को लेते हैं। बिकॉज मैनेजमेंट जो है essentially is an outlet of sociology. Management is essentially like what, डिस्कवरिंग बिजनेस वाया सोसाइटी। जिसको समाज की अच्छी समझ होगी ना वही एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। तो sociologists have a very interesting role. They have a role in political consultancy and they can have a very prominent role in business consultancy also, ठीक है। बट हाँ, टॉप नॉच जगह से वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि किसी अरे गरे जगह से पढ़ लिया और फिर सोच रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं। यू विल हैव टू गो टू अ गुड प्लेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो हिंदू मिल जाए, मिरांडा हाउस मिल जाए, LSR मिल जाए, जीसस एंड मेरी कॉलेज मिल जाए, तो यहाँ से पढ़ करके फिर बाहर चले जाओ या आगे कुछ। हाँ, केवल बैचलर से तो नहीं होगा, या केवल बैचलर से कम होगा। बैचलर के साथ एक मास्टर्स डिग्री ले लोगे, इट वुड बी अ गुड फुलफिलिंग करियर। मेहनत करना पड़ेगा बट यू कुड मेक इट। अगर तुम डिसिप्लिन के इस सेंस को समझ लिया, फ्यूचर को समझ लिया, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इट विल हेल्प यू सेल थ्रू। Any more questions?
Morning, sir. I, on the behalf of Trinity Global School, thank you for taking our time, giving an insight to our children. So it was a very good session indeed. And students have definitely learned a lot of things, the career options and the way they have to inculcate the good habits, become a good citizen first, and then opt for a good career. Thank you so much. And in future also we'll seek your help. So whenever whenever the students need your help, please help us. Thank you so much. Thank you. Thank you.